صبح خان حسب معمول بیدار ہوا۔ اس نے بروقت غسل کیا اور گھر والوں کے ساتھ پاٹ میں بھی شرکت کی۔ ہندو گھرانوں کی روایت کے مطابق سب مل کر پاٹ کر رہے تھے۔ وہ بھی کبھی کبھی اس میں شریک ہو جایا کرتا تھا۔ پاٹ سے فراغت پر وہ معمول کے مطابق اخبار کا مطالعہ کرنے لگا۔ اخبار کے پہلے ہی صفحے پر دلی کی اس ماڈرن کالونی کے ایک بنگلے میں پراسرار آگ لگنے کا واقعہ بڑے سنسنی خیز انداز میں رپورٹ کیا گیا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہاں سے ایک جلی ہوئی لاش بھی برآمد ہوئی ہے اور بنگلے کا بے ہوش چوکیدار بھی جو زخمی تھا۔ اخبار نے اس واردات کے متعلق اپنے اندازے قائم کیے تھے اور اس کے پیچھے کسی گہری سازش کا رونا بھی رویا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اخبار وہیں رکھ دیا اور ناشتے کی میز پر آ گیا۔ آج بلاکی رام نے ان کے ہاں دعوت پر آنا تھا۔ سہائے نے ناشتے کی میز پر ہی اس کی آمد اور پروگرام سے متعلق مشورے شروع کر دیے۔ رما نے کالج سے چھٹی کر لی تھی کیونکہ گھر میں بہت کام تھا۔ کشور اور آشا نے اس سلسلے میں کسی بھی بوریت کا سامنا کرنے سے کالج چلے جانا بہتر سمجھا تھا۔ دوپہر تک بلاکی رام اور اس کے گھر والوں کی آمد تک سبھی لوگ کام میں جٹے رہے۔ بلاکی رام دوپہر سے کچھ دیر پہلے اپنے پریوار سمیت ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں آ گیا تھا۔ اس نے سویلین کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنے 7 بچوں کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ صوبیدار بلاکی رام کی 5 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ 3 لڑکیاں بڑی تھیں اور 2 چھوٹی۔ تینوں نے میک اپ میں ایک دوسرے کو مات دی ہوئی تھی اور بالکل ایک دوسرے کی ہم عمر دکھائی دیتی تھی۔ انہیں جب بھی موقع ملتا خان سے کوئی نہ کوئی بات ضرور کہہ دیتی۔ رما نے یہ بات خاص طور سے محسوس کی تھی کہ تینوں ہی خان پر لٹو ہو گئی تھی۔ وہ ان تینوں لڑکیوں اور خان کی بوکھلاہٹ سے بیک وقت لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بلاکی رام کے بچوں نے وہ ادھم مچائی تھی کہ خدا کی پناہ۔ کشور اور آشا بھی کالج سے واپس آ چکے تھے اور دونوں خاصے زچ دکھائی دے رہے تھے۔ کشور تو بطور احتجاج گھر سے باہر ہی چلا گیا تھا۔ خان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بلاکی رام کی لڑکیوں سے جان چھڑانا تھا جو اس کے گلے کا ہار بن رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ اس کی روانگی کا کوئی بہانہ بن جائے۔ رما سے اس نے متعدد مرتبہ اس مصیبت سے چھٹکارے کی درخواست کی تھی لیکن وہ سوائے ہنسنے کے اور کچھ نہ کر سکی۔ بلاکی رام کی زبان مسلسل چل رہی تھی اور وہ بے تحاشا کھاتے کھاتے اپنی بہادری کے جعلی واقعات بھی سنا رہا تھا۔ پھر موضوع گفتگو پاکستانی جاسوس بن گئے۔ آج کل یوں بھی پاکستانی کمانڈوز اور جاسوس ہر بھارتی کے حواس پر بھارتی پریس نے سوار کر دیے تھے اور خان نے اندازہ لگایا تھا کہ زندگی کا شاید ہی کوئی شعبہ ان کے ذکر سے محفوظ رہا ہو۔ بلاکی رام بڑے فخر سے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا ان لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کس طرح بھارتی فوج بنگالی غداروں اور مقامی بدماشوں اور فوجیوں پر مشتمل ایک فوج مکتی باہنی کے نام سے تیار کر رہی ہے جو مشرقی پاکستان میں سرگرم عمل ہے۔ اس نے بتایا کہ جلد ہی ان لوگوں کی کارروائیاں دنیا کے سامنے آنے لگیں گی اور یہ سب مل کر بنگلہ دیش بنا ڈالیں گے۔ پاکستانی کمانڈوز کے ذکر کے بعد وہ اپنی بے ایمانی کے کارنامے سنانے ہی لگا تھا کہ عین ان لمحات میں جب بوریت سے خان کا سر دکھنے لگا، رما نے اسے رجنی کے فون کی اطلاع دی اور وہ خدا کا شکر گزارتا اٹھ کر فون والے کمرے میں آ گیا۔ رجنی نے اسے اطلاع دی تھی کہ 5 بجے اسے چھٹی ملے گی، خان اسے آ کر لے جائے۔ وہ اب اس کو ہر بات بتانا اپنا فرض خیال کرنے لگی تھی۔ 4 بج رہے تھے جب خان نے بلاکی رام اور اس کے پریوار سے ضروری کام کا بہانہ کر کے معذرت کر دی۔ روانگی سے پہلے اس نے مسٹر سہائے کو ایک طرف لے جا کر ہدایت کی تھی کہ وہ بچوں کی مٹھائی کے بہانے روانگی کے وقت 100 روپیہ دے دیں۔ انہوں نے خان سے کہا اب میں ایسا بچہ بھی نہیں ہوں کہ یہ بات نہ سمجھ سکوں، اور سب ہنس دیے۔ رجنی کے دفتر کے اندر جانا آج نہ جانے کیوں اس نے مناسب نہ سمجھا اور مین گیٹ ہی سے اسے فون پر اپنی آمد کی اطلاع کر دی۔ وہ یہاں تک رکشے پر آیا تھا اور اب اس نے رکشے والے کو رخصت کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے رجنی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ خان جان بوجھ کر دروازے سے کچھ دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ رجنی نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی دہائی دی، غضب ہو گیا بھیا۔ اس نے رجنی کے منہ کے سامنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ٹھہرو ٹھہرو، اگر کوئی بری خبر ہے تو مجھے مت سنانا، میں پہلے ہی بہت بور ہو چکا ہوں۔ آج وہ کمبخت صوبیدار اپنے پریوار سمیت دعوت پر آیا ہوا تھا۔ رجنی نے شکایت بھرے لہجے میں کہا اوہو بھیا، ایک تو تم بات کا ٹیمپو ہی توڑ دیتے ہو، معلوم ہے میں کیا بتانے والی تھی؟ خان نے پوچھا کیا؟ ارے یہی کہو گی کہ کوئی بنگالی جنرل بھاگ کر آیا ہے یا کسی پاکستانی جاسوس نے کوئی ریلوے لائن اڑا دی ہے۔ ایک تو تمہارے سر پر ہر وقت جو نوکری سوار ہے، اس سے میں بڑا تنگ آ گیا ہوں۔ رجنی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ بولی ایسی کوئی بات نہیں، وہ جو میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ ایک بنگالی کرنل بھاگ کر آ گیا ہے، اسے پاکستانی انٹیلیجنس نے یہاں قتل کروا دیا ہے۔ اس مرتبہ خان نے واقعی بوکھلا جانے والی ایکٹنگ کی ہے، لیکن اتنی بڑی خبر اخبار میں تو نہیں چھپی۔ رجنی نے کہا چھپی ہے اور آپ نے پڑھی بھی ہے۔ خان نے کہا کمال ہے بھائی،
ना तो मेरा हाफजा इतना कमजोर हुआ है और ना ही मेरी नजर। वो बोली बात यह है भैया कि ऐसी खबरें बज़ाहिर किसी को नजर नहीं आती। तुमने आज अखबार में मॉडर्न कॉलोनी के एक बंगले में आग लगने की खबर तो पढ़ी है ना? खान ने कहा हाँ वो तो पढ़ी है। रजनी ने बड़े राजदाराना लहजे में कहा उसी में तो जलकर मरा है ये कर्नल। जवाब में खान ने बड़ा जोरदार कहकहा लगाया, एक तो तुम लोग हर बात में से बात निकाल लेते हो, ये बाल की खाल निकालने वाली आदत कुछ अच्छी नहीं। बंगले में किसी वजह से आग लग गई और तुमने समझ लिया कि उसे कत्ल किया गया है। खान ने बड़े गैर संजीदा लहजे में कहा था। वो बोली भैया एक तो तुम्हारी ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती है, मेरी हर बात पर तनकीद शुरू कर देते हो। खान ने एकदम संजीदा होने की अदाकारी करके रजनी को बौखला ही तो दिया था। बोला ओह सॉरी, देखो रजनी क्या हुआ जो हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन कभी कभी मेरा मन कहता है जरूर किसी पिछले जन्म में हम बहन भाई बिछड़ गए हैं। मैं तुम्हें दुखी करने का तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरी किसी बात का बुरा मत माना करो, ये मेरा स्टाइल है। रजनी ने बेकरार होकर उसका हाथ थाम लिया। अरे नहीं भैया, अगर मैं कभी बेतकल्लुफी पर उतर आऊं तो तुम सीरियस मत हो जाया करो, ये तो मैं यूं ही कह देती हूँ। अगर तुमसे न कहूं तो किससे कहूं? खान ने एक स्नैक बार नजदीक आने पर कहा अच्छा चलो कुछ खाते पीते हैं। रजनी ने बज़ाहिर उसका मूड नॉर्मल करने के लिए उसकी आंखों में झांकते हुए लोफरों के से अंदाज में सीटी बजाई। ए भैया नाराज काहे को होता है, आओ ना, उसने अपना लहजा बिगाड़ कर कहा और खान के बाजू में बाजू डालकर स्नैक बार की तरफ चलने लगी। ये सब कुछ उसने इतनी बेतकल्लुफी से किया कि वहां से गुजरने वाले राहगीर दोनों की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखने लगे। खान ने उसे टहूका दिया, कुछ ख्याल करो इन लोगों का। रजनी ने बड़े फिल्मी अंदाज में कहा जलते हैं साले, जलने दो ना, और उसी पोजीशन में स्नैक बार के दरवाजे तक चली आई। दोनों एक खाली मेज पर जम गए। एक मौद्दब बैरा उनके नजदीक आकर आन खड़ा हुआ। मेरे लिए कॉफी और साहब जो पसंद फरमाएं, उसने बैरे से कहा। खान ने बैरे से कहा मेरे लिए भी कॉफी, और खामोशी से रजनी की तरफ देखने लगा जिसकी आंखों में अभी तक शरारत नाच रही थी। भैया एक बात बताओगे? खान बोला जी। बोली तुम वाकई मेरी बात का गुस्सा करते हो? खान ने कहा सच कह दूं? वो बोली हाँ। खान ने कहा नहीं। देखो रजनी आइंदा मुझसे ये सवाल भी मत करना। मैं तुम्हारे मुताल्लिक क्या सोचता हूँ, तुम्हारे लिए क्या करना चाहता हूँ, ये भगवान ही जान सकता है। वो बोली मैं जानती हूँ, मेरा मन कभी झूठ नहीं बोलता। कोई ताकत मुझे तुम्हारे मिलने के बाद से एहसास दिलाने लगी है जैसे मेरी कोई बहुत बड़ी कमी पूरी हो गई हो। खान चुप रहा। खैर ये बात तो पूरी सुनना ही पड़ेगी। रजनी ने फिर उसे छेड़ा। खान ने कहा अच्छा भैया सुना दो, लेकिन इस होटल से बाहर नहीं। वो बोली भैया हमारी इत्तला के मुताबिक पहले कर्नल की गर्दन की हड्डी तोड़ी गई और दरवाजे पर मौजूद गार्ड भी जख्मी था। किसी ने उस पर अचानक ही हमला किया था। उसके बाद उसे होश नहीं रहा, वो बेहोशी की हालत में ही मिला था। खान ने कहा भाई इसका मतलब तो यही है कि ये लोग बहुत तेज हैं। खान ने ये बात बिल्कुल इस तरह कह दी थी जैसे उसकी गुफ्तगू बहुत संजीदगी से सुन रहा हो। वो बोली यही तो मैं कहती हूँ कि हमें अपने दुश्मन को कमजोर नहीं जानना चाहिए, लेकिन मेरा बॉस नहीं सुनता, गधा कहीं का। किसी रोज देख लेना ये लोग हमारा हेडक्वार्टर भी आकर उड़ा जाएंगे। खान ने कहा अब ऐसी बात भी नहीं है कि तुम उन्हें अपने जहन पर ही सवार कर लो। अगर तुम्हारे अफसर नालायक हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तानी बहुत बहादुर लोग हैं। भाई ऐसा तो होता ही है। दोनों बहन भाई अब बाहर निकल आए थे। खान उसे जबरदस्ती एक नजदीकी मार्केट में ले गया था। उसने रजनी को नाना करने के बावजूद 2-3 साड़ियां खरीद कर दी थीं और मौसी जी के लिए अलग से साड़ी लेना भी नहीं भूला था। दोनों मार्केट के बाहर किसी रिक्शे के इंतजार में खड़े थे जब उनकी पुश्त पर किसी ने रजनी को रजनी जी कहकर पुकारा। खान रजनी के साथ ही चौंका और एकदम पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके सामने खिलते हुए रंग का एक नौजवान जिसकी शक्ल से जहानत और शराफत टपक रही थी बड़ा मौद्दब खड़ा था। हेलो अहमद कैसे हो? उसने खान की तरफ कनखियों से देखते हुए कहा जी ठीक हूँ। रजनी ने दोनों का तारुफ करवाया। ये मेरे भैया हैं अरुण कुमार और आप हैं अहमद कमाल बेग, मेरे कॉलेज के साथी हैं। रजनी बहुत बेबाक लड़की थी। रॉ की तरबियत ने गो के उसे बेहया बनाने की भी मकदूर भर कोशिश की थी, लेकिन अभी तक उसकी घुट्टी में मौजूद निस्वानियत और शराफत का मुकम्मल जनाजा नहीं निकला था। वो बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ और बेझिझक जरूर थी, लेकिन उसमें अभी तक मशरकी औरत की रिवायती शर्म व हया बाकी थी। खान ने महसूस किया था कि अहमद कमाल बेग से उसका तारुफ करवाते वक्त रजनी बिल्कुल ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। खान ने उसे तारुफ और एक दूसरे की खैर आफियत पूछने के बाद दावत दी, आइए एक कप चाय पी लें। वो कुछ झिझक महसूस कर रहा था, शायद रजनी की भी यही हालत थी। बोला जी फिर कभी सही। खान ने कहा अरे फिर क्यों भाई, आओ ना। खान वापस उसी स्नैक बार की तरफ मुड़ गया। उसने जानबूझकर दोनों को अपने पीछे आने और आपस में गुफ्तगू करने का मौका दिया था। दोबारा वो उसी मेज पर आकर बैठ गए जिससे अभी अभी उठ कर गए थे। क्या काम करते हैं आप?
वो बोला मैं ने MA किया है और अब वालिद साहब का बिजनेस संभाल रहा हूँ। खान ने उसे छेड़ा, कोई नौकरी कर लेते। रजनी बोली ये नौकरी नहीं कर सकते, मुगल बादशाहों की औलाद है ना। उसने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए माहौल को जरा खुशगवार बनाना चाहा। कमाल बेग ने कहा आप तो जानते ही हैं कुमार जी, नौकरी अव्वल तो मिलती नहीं, अगर मिल भी जाए तो इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, फिर मेरे सिवा अब्बा जान का और है भी कौन। अल्लाह का शुक्र है अच्छा भला बिजनेस है, वही संभाल लूंगा। चाय पीते हुए खान उससे जबरदस्ती बेतकल्लुफ हो गया था और वहां से उठने से पहले वो इन दोनों के मुताल्लिक एक अंदाजा कायम कर चुका था। वो जान गया था कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान इतना ज्यादा फासला है कि जिसे पाटना दोनों के लिए ही मुमकिन नहीं। भारत में मुतजाद मजाहिब के लड़के लड़कियां आपस में शादियां तो जरूर कर लेते थे, लेकिन इसकी उन्हें बहुत ज्यादा कीमत भी अदा करनी पड़ती थी। यहाँ तो मामला और भी संगीन था। रजनी न सिर्फ हिंदू लड़की थी बल्कि भारत की आला तरीन इंटेलिजेंस रॉ में भी ज़ेरे तरबियत थी, और अब उसके लिए अपनी मर्जी से जिंदा रहने के मौके बहुत कम थे। जिस सादगी और खुलूस से रजनी उसे भाई के नाते टूट कर चाहने लगी थी, उसके बाद खान के लिए उसे इस तरह बेसहारा छोड़ देना मुमकिन नहीं रहा था। अगरचे ये सब कुछ उसके बिजनेस का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो दुनिया की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरह कोई पेशावर जासूस तो था नहीं। वो एक नजरियाती मुमलिकत और मखसूस नजरियात का हामिल मुसलमान लड़का था, जिसके लिए इंसानी मामलात से बिल्कुल कट कर सिर्फ दूसरे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहना मुमकिन नहीं था। इस मुलाकात ने उसे खासा बोझल कर दिया था। अहमद कमाल बेग दोनों को टैक्सी तक छोड़ने आया था। दोनों घर तक पहुंचने तक खामोश रहे। टैक्सी खान ने जानबूझकर घर से कुछ दूर ही छोड़ दी थी। रजनी भी समझ गई कि वो उससे कुछ गुफ्तगू करना चाहता है। दोनों खामोश चंद कदम चलते रहे, फिर रजनी रुक गई। उसने खान से नजरें मिलाए बगैर पूछा नाराज हैं आप? खान ने कहा हाँ, लेकिन इस बात पर नहीं जो तुम समझ रही हो, बल्कि इस पर कि तुमने मुझे भी आम किस्म का मुतासिब हिंदू जान लिया। खान ने शिकायत भरे लहजे में कहा। रजनी ने शिद्दत जज्बात से बेकाबू होकर कहा भैया, उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। खान ने कहा हाँ रजनी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा भाइयों जैसा दोस्त और दोस्तों जैसा भाई हूँ। मुझसे तुम्हें कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मोहब्बत करने वाले तो बहुत बहादुर होते हैं रजनी, और मोहब्बत इन तमाम कबाहतों से बहुत अरफा और आला किस्म का जज्बा है। ये मजहब की तमहीद से आजाद है रजनी, बिल्कुल आजाद। रजनी ने शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर अपना सर उसके सीने से लगा दिया। भैया। खान ने महसूस किया जैसे वो रो रही थी। वो बोला हौसला करो पगली, मेरे जीते जी तुम्हें कोई परेशानी लाहक नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर गुजरूंगा जो मेरे इख्तियार में है। खान ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। खान के चेहरे पर नजर पड़ते ही मौसी जी की बातें खिल गईं। वो हस्बे साबिक बेख्तियार उसकी बलाएं लेने के लिए आगे बढ़ी। खान वक्तन फवक्तन उसके लिए कुछ ले आता था। थोड़ी देर तक अपनी मौसी जी के पास बैठकर वो वापस चला आया। घर पहुंचा तो बलाकी राम अपनी फैमिली समेत रुखसत हो चुका था। खान ने खुदा का शुक्र अदा किया। रात गए तक आशा और किशोर बलाकी राम की बेटियों का नाम ले लेकर उसे छेड़ते रहे और वो उनके साथ साथ हंसता रहा। बलाकी राम ने रवानगी से पहले सुहाय की मेहमान नवाजी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया था और सुहाय को अगले बड़े ऑर्डर की खुशखबरी भी सुना दी थी। कर्नल एक्स की मौत कोई मामूली सानहा नहीं था भारतीय इंटेलिजेंस के लिए। वो लोग हिलकर ही तो रह गए थे। खान ने पै दर पै उन पर बहुत सी चोटें कर दी थी और उन्हें इस बात का यकीन हो चला था कि पाकिस्तान का कोई बहुत ही ज़हीन एजेंट उनके अंदर आन घुसा है। इस बात का एहसास खान को भी बखूबी था और उसके अफसरान को भी। यही वजह है कि उन लोगों ने खान को फिलहाल पर्दा स्क्रीन से हटा लिया था और उसने 2 माह का ये सब्र आजमा अरसा बड़ी खामोशी से गुजारा। इस दौरान बस वो मामूल की मालूमात बलाकी राम और रजनी के जरिए हासिल करता रहा। इन 2 महीनों में उसने एक काम जरूर किया था कि रजनी और अहमद कमाल बेग दोनों को इस बात का यकीन दिला दिया था कि दुनिया की कोई ताकत अगर उनका जज्बा सच्चा है तो उन्हें आपस में जुदा नहीं कर सकती। और इस काम में उसकी सबसे ज्यादा मदद की थी रमा ने। खान पहले तो रमा से ये बात करते हुए भी झिझकता था, लेकिन एक रोज उसने पहले तो बैनुस्सुतूर में बात करके उसकी राय मालूम की, फिर रमा को असलियत बता ही दी। वो हैरान ही तो रह गया जब रमा ने बड़ी गर्मजोशी से उन दोनों के लिए नेक जज्बात का इजहार किया। बोली इस मोटी ने आज तक मुझे भी इस बात की हवा नहीं लगने दी। कोई बात नहीं, पूछ लूंगी उससे, उसने बज़ाहिर गिला किया था। अहमद कमाल बेग का वालिद इस हद तक तैयार था कि वो अपने बेटे के लिए यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत के किसी भी दूसरे सूबे में बसने के लिए तैयार था। उसने उन लोगों को यहाँ तक कह दिया था कि अगर जरूरत पेश आई तो वो दोनों को मुल्क से बाहर भेज देगा। अब मरहला बाकी रह गया था रजनी की माँ से बात करने का, और इसके लिए खान किसी अच्छे मौके की तलाश में था। हालात हर रोज नया रुख इख्तियार कर रहे थे। रजनी को सब इंस्पेक्टर का ओहदा मिल चुका था, लेकिन उसकी खिदमात हेडक्वार्टर ही के लिए मखसूस थी। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी सरहद से भाग कर आने वाले गद्दारों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था और रॉ ने इन लोगों को सुधाकर मशरकी पाकिस्तान में दाखिल करने की बाकायदा
मंसूबा बंदी शुरू कर दी थी। इस सिलसिले में एक खास सेल बनाया गया था जिसमें रजनी भी शामिल थी। बुनियादी तौर पर उसके फराइज में इन बंगालियों का दिल लुभाना और उनके दिलो दिमाग को माऊफ करके उनमें पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का जहर घोलना था। लेकिन रजनी अपनी नौकरी से कभी इंसाफ न कर सकी। अहमद कमाल बेग से मंसूब हो जाने के बाद वो जहनी तौर पर खुद को मुसलमान समझने लगी थी और जानती थी कि जल्द या बदेर एक तो उसका मजहब बदल जाएगा और दूसरे उसे इस लानती नौकरी से भी छुटकारा मिल जाएगा। उसका दिल कई बार चाहा कि इस घुटन से जल्द ही निजात हासिल कर ले और जहां से छुटकारे की कोई सूरत निकाले, लेकिन खान ने अभी उसे कोई भी जज्बाती कदम उठाने से सख्ती से मना कर दिया था। वो कोई सियासी लीडर तो नहीं था कि हालात पर उसकी नजर बहुत गहरी होती, लेकिन एक बात वो बहरहाल जानता था कि इन हालात में जब सारा भारत मुस्लिम दुश्मनी की आग में झुलस रहा है, रॉ की एक सब इंस्पेक्टर का किसी मुसलमान से शादी करना दोनों को जिंदा दरगोर कर देगा। जैसे ही अखबारात के हाथ ये खबर लगेगी वो उसे उछालेंगे और सारे भारत में मुसलमानों के खून की नदियां बहा दी जाएंगी। उस सोसाइटी में गो कि ये कोई अचंभे की बात न होती और हुकूमत भी अपने दावा सेकुलरिज्म के तहत बज़ाहिर उनकी हौसला अफजाई करती, लेकिन दोनों का अंजाम क्या होता वो ये सोचकर ही थर्रा कर रह जाता। भारत में आए उसे करीबन 1 साल हो गया था। वो गुज़श्ता साल दिसंबर में यहाँ आया था और अब नवंबर आ चुका था। सर्दियों में वो यहाँ आया था और गर्मियों के बाद अब फिर सर्दी जोर पकड़ने लगी थी। इस दौरान उसने 20 इनफिरादी और इज्तिमाई कारनामे सर अंजाम दिए थे। पल पल की खबर अपने मुल्क को पहुंचाई थी। मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी को भारतीय फौज की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी और उन लोगों ने अमलन मशरकी पाकिस्तान में सिवाय कैंटोनमेंट एरिया और बड़े बड़े शहरों के अपनी बादशाही कायम कर ली थी। खान को मुकम्मल तौर पर रॉ से नत्थी कर दिया गया था। उसे मशरकी पाकिस्तान में दुश्मन के इख्तियार करने वाले हथकंडों से अपने मुल्क को वक्त से पहले आगाह करने के फराइज सौंपे गए थे। भारतीय और बैनुल अक़वामी अखबारात पढ़ पढ़ कर उसका जहन माऊफ होने लगता। वो सोचता अगर दुश्मन की तमाम प्लानिंग की खबर मुल्क में पहले पहुंच जाती है फिर भी वो कामयाब क्यों नहीं होते। बिलाखिर उसे समझ आ गई कि मशरकी पाकिस्तान में मुकाबला एक दुश्मन से नहीं था। वहाँ की फजाएं, हवाएं, नदी नाले, दरिया, जंगल, दरख्त, पहाड़ सब पाकिस्तानी फौज के दुश्मन हो रहे थे। दुश्मन का जब जी चाहता उनकी पुश्त में बड़े इत्मीनान और मासूमियत से छुरा घोंप देता। उसकी इत्तलात पर फौरन अमल होता और दुश्मन के मजमूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए मुतबादिल प्लानिंग की जाती। लेकिन अभी ये प्लानिंग पाकिस्तानी अफसरों के जहनों में ही होती थी कि दुश्मन को उसका इल्म अपने जराए से हो जाता और वो फौरन अपनी स्कीम बदल कर हमलावर हो जाता। जुलाई के आगाज ही में भारतीय तोपखाने ने मशरकी सरहदों के दूर अंदर तक गोलाबारी शुरू कर दी थी और भारतीय फौजें अब बाकायदा पाकिस्तानी फौज पर हमला करने लगी थी। खान तक जब ये खबरें पहुंचती तो वो खासा परेशान होता, लेकिन उसे ये इत्मीनान जरूर था कि जल्द या बदेर उसकी बाहिम्मत फौज के जाले दुश्मन का मुंह तोड़कर रख देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।